ایڈیٹر نارتھ سہیل اقبال بھٹی نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کریں گے۔ سر، اہم ترین فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ دیکھیے، کافی عرصے سے یہ تجویز زیر غور رہی ہے مختلف اوقات میں سیاسی صورتحال کے پیش نظر، اگرچہ کہ ماضی کے اندر تو کوئی ایسی کامیابی نہیں مل سکی، لیکن اب دوبارہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا کافی حیران کن ہے۔ لیکن اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو بدلتی سیاسی صورتحال کے پیش نظر یہ ایک کوشش لگتی ہے، جیسا کہ کچھ عرصہ قبل پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا تھا، جس میں بانی پی ٹی آئی کے کچھ ایسے بیانات جو کہ ریاستی اداروں کے سے متعلق آئے تھے دوران سماعت، اس کے بنیاد ایک پنجاب گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیتے ہوئے اس معاملے کو پرسو کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ معاملہ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں بھی پہنچا، اور وہاں سے یہ ریفلیکشن ملی تھی کہ پنجاب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جس قسم کے کچھ بیانات ان تک پہنچے، ان کی روشنی میں جب وقت کی ضرورت پیش آئے تو اس پابندی کو پروسیڈ کیا جائے۔ تو یہ کوشش ڈیفینیٹلی کی جائے گی، جیسے کہ اب ریسنٹلی کچھ سیاسی حالات بدلے ہیں اور قانونی محاذ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے کچھ بڑی فتوحات حاصل کی ہیں، تو ایک ڈیسپریٹ کے اندر یہ کیسی موو تو ہو سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ایسی پابندی عدالتی سطح کے اوپر، عدالتی لیول کے اوپر سسٹین کر پائے گی، کیونکہ جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا جو ایک مورائل تھا وہ کافی اس وقت ہائی ہے، اور بالخصوص جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو حالیہ فیصلہ آیا پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن پاکستان کا جو فیصلہ تھا، جنہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کرتے ہوئے کچھ ایسے فیصلے کیے جن کے نتائج اب بالکل سامنے ہیں، اور بہت بیک فٹ پہ جانا پڑا الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی، اور اس تناظر میں دیکھا جائے تو مشکل ہے کہ یہ چیز امپلیمنٹ ہو پائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سیاسی ساری صورتحال جاری ہے اس کے اوپر کافی انحصار پاکستان تحریک انصاف پر بھی ہے کہ وہ کس طریقے سے کے ساتھ اپنے معاملات کو مزید بہتر بناتے ہیں اور معاملات خراب ہونے سے بچا پاتے ہیں، لیکن جو اس اسٹیج کے اوپر اگر وہ ایسی اٹیمپٹ کرتے ہیں تو یہ قانونی نقطہ نظر سے اور عدالتوں میں میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ سسٹین کر پائے گا۔ ایک معاملہ ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے معاملہ دوبارہ ٹیک اپ کیا ہے، اس کی غالباً 23 جولائی کو اس کی سماعت ہونا ہے، وہ ایک ڈفرینٹ پروسیڈنگ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ایک پارٹی کو اگر آپ پابندی لگانے کی کوشش کریں گے، اور وہ پارٹی بالخصوص جسے آپ کے اپنے پارٹی کی کچھ رہنما بھی پاکستان کی اس وقت ایک مقبول پارٹی کا درجہ قرار دیتے ہیں، تو اس سے متعلق آپ ایسا فیصلہ کریں گے تو وہ عوام میں اور عدالت میں سسٹین نہیں کر پائے گا۔ جی سہیل صاحب، ایک تو یہ چیز کی اپیل کب تک دائر کی جائے گی، ذرائع سے کچھ پتہ لگ سکا ہے ابھی؟ دیکھیے، یہ کافی عرصے سے ان کی تیاری تو ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور یہ معاملہ کوئی 2 ماہ سے زیر غور بالکل تھا، اور اس بات کے امکانات تھے کہ کسی بھی وقت حالات کی ضرورت کے پیش نظر اس معاملے کو پروسیڈ کیا جائے گا، لیکن ابھی تک یہ ہوا نہیں۔ لیکن اب جیسا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی فتح ملی اور قومی اسمبلی کے اندر ایک بڑی جماعت بن کر ابھری، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگلے ہی دن بانی پی ٹی آئی کا دوران عدت نکاح کیس کا جو معاملہ تھا وہ سزائیں بھی کالعدم قرار دے دی گئی، وہاں سے ان کی بریت ہو گئی، تو 2 دنوں کے دوران یہ جو 2 بڑے فیصلے آئے تو اسے باقی حکومت اور نون لیگ کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک تو تھا۔ تو اس سے پہلے جیسے کہ میں نے بتایا کہ 2 سے 3 ماہ 2 ماہ تقریباً یہ تجویز زیر غور رہی ہے، اور پنجاب کابینہ کے اجلاس میں بھی یہ معاملہ پہنچا تھا، اور مختلف وجوہات کی بنیاد کے اوپر ان آپشنز کو زیر غور آتا رہا۔ اس کے بعد کچھ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے کچھ ایسی ٹویٹس آئیں جو کہ 1971 کے صورتحال سے متعلق تھی، اور اگرچہ کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کلیئرٹی دی گئی کہ بیرون ملک سے یہ ٹویٹ آپریٹ ہوا تھا، اور ان کی جو ڈیجیٹل میڈیا کی ٹیم ہے، لیکن اس وقت یہ بہت بڑی کنٹروورسی ڈیولپ ہوئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایف آئی اے نے بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا، اور ایف آئی اے نے باقاعدہ طور کے اوپر اڈیالہ جیل میں جا کر اس معاملے کی تحقیقات بھی کی تھی، اور لیکن یہ معاملہ اب کس نہج پہ پہنچے اور کیسے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ وقت آپ کو بتائیں گے کہ اہم ترین حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے، حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے اور فیصلہ کر لیا ہے، درخواست سپریم کورٹ میں دائر کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا کیس کرے گی۔
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से कहा गया है हुकूमत का मुतालबा है कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं, अहम तरीन खबर सामने आ रही है। हुकूमत ने PTI पर पाबंदी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का ऐलान कर दिया है। वफाकी हुकूमत PTI पर पाबंदी लगाने का केस करेगी। हुकूमत का मुतालबा है कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से कहा गया है पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का भी फैसला हुआ है। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का भी फैसला किया गया है। आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। अता तारड़ की जानिब से कहा गया है हुकूमत ने PTI पर पाबंदी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का ऐलान किया है। अहम तरीन खबर इस वक्त सामने आ रही है, हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है। हुकूमत ने PTI पर पाबंदी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का ऐलान कर दिया है। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का भी फैसला किया गया है। आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। अता तारड़ की जानिब से ये बयान सामने आया है, मंजूरी के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। मुमकिन है कि काबीना के अगले इजलास में पाबंदी का मामला लाया जाए। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करना पड़े तो करेंगे। बैरून मुल्क से पाकिस्तान को खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के खिलाफ बैरून मुल्क में मखसूस लॉबियां साजिश करने में मसरूफ़ हैं। अता तारड़ की जानिब से ये कहा गया है तहम्मुल को कमज़ोर समझा गया मगर अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी अपील दायर करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत नज़रसानी अपील दायर करने जा रही है, ये हमारा हक है। अता तारड़ का मजीद भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने PTI को बिन मांगे रिलीफ दिया। जिन खवातीन की हक तलफी हुई वो समझती हैं कि नज़रसानी अपील दायर की जाए। PTI ने फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल तक स्टे लिया। बानी PTI ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को फ़रोग़ दिया। बानी PTI का पूरा ख़ानदान 9 मई को जलाओ घिराव में मुलव्वस था। अता तारड़ की जानिब से ये कहना था 9 मई को ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफाद पर हमला किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कुछ देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अहम तरीन ऐलानात किए हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई को ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफाद पर हमला किया गया। बानी PTI दहशत गर्दों को वापस लेकर आए हैं। बानी PTI को पाकिस्तान में दहशत गर्दों को बसाने का इख्तियार किसने दिया? अता तारड़ की जानिब से ये भी कहना था बानी PTI की मुल्क दुश्मनी साफ जाहिर है। अहम तरीन हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया गया है कि हुकूमत का PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला हो चुका है। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का ऐलान भी किया है। जबकि बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का भी फैसला कर लिया गया है। आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस काबीना की मंजूरी के बाद दायर किया जाएगा। मुमकिन है कि काबीना अगले इजलास में पाबंदी का मामला लाया जाए। उनका मजीद भी कहना था कि पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करना पड़े तो करेंगे। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के खिलाफ बैरून मुल्क में मखसूस लॉबियां साजिश करने में मसरूफ़ हैं। अता तारड़ की जानिब से ये कहना था और अहम तरीन फैसला भी किया गया है। हुकूमत को पाबंदी लगाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का अहम तरीन और बड़ा फैसला कर लिया है। उनका कहना था अता तारड़ का कि पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी अपील दायर करने का फैसला किया है। हुकूमत नज़रसानी अपील दायर करने जा रही है, ये हमारा हक है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कुछ देर कबल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें अहम तरीन फैसला किया और उनका कहना था कि जिन खवातीन की हक तलफी हुई वो समझती हैं कि नज़रसानी अपील दायर की जाए। PTI ने फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल तक स्टे लिया। बानी PTI ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को फ़रोग़ दिया। अता तारड़ की जानिब से ये कहा गया बानी PTI का पूरा ख़ानदान 9 मई को जलाओ घिराव में मुलव्वस था। 9 मई को ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफाद पर हमला किया गया। बानी PTI दहशत गर्दों को वापस लेकर आए। बानी PTI को पाकिस्तान में दहशत गर्दों को बसाने का इख्तियार किसने दिया? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से कहना था और हुकूमत की जानिब से उन्होंने अहम तरीन ऐलान भी किया। हुकूमत ने PTI पर पाबंदी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का अहम तरीन ऐलान कर दिया है। जबकि बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का फैसला भी किया गया है। आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। हुकूमत ने PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है और बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का भी
फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा ये फैसला और रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस काबीना से मंजूरी के बाद दायर किया जाएगा। मुमकिन है काबीना अगले इजलास में पाबंदी का मामला लाया जाए और पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करना पड़े तो करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से अहम तरीन इस वक्त बयान दिया गया है और उन्होंने ये बताया है कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ बैरून मुल्क में मखसूस लॉबियाँ साजिश करने में मसरूफ़ हैं। अता तारड़ की जानिब से कहा गया है तहम्मुल को कमज़ोर समझा गया मगर अब ऐसा नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है और उनका ये कहना था कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर नज़र सानी अपील दायर करने का फ़ैसला कर लिया है। हुकूमत नज़र सानी अपील दायर करने जा रही है, ये हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को बिन मांगे रिलीफ दिया। जिन ख़वातीन की हक तलफी हुई वो समझती हैं कि नज़र सानी अपील दायर की जाए। अता तारड़ अहम तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अहम तरीन ऐलान किया गया और उनका ये भी कहना था कि पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल तक स्टे लिया। बानिया पीटीआई ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को फ़रोग़ दिया। बानिया पीटीआई का पूरा ख़ानदान 9 मई को जलाओ घिराव में मुलव्वस था। 9 मई को ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफाद पर हमला किया गया। अता तारड़ की जानिब से ये भी कहना था कि बानिया पीटीआई दहशत गर्दों को वापस लेकर आए। बानिया पीटीआई को पाकिस्तान में दहशत गर्दों को बसाने का इख्तियार किसने दिया? अता तारड़ की जानिब से कहना था बानिया पीटीआई की मुल्क दुश्मनी साफ जाहिर है। अहम तरीन फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया है। हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का फैसला कर लिया है, जबकि बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का भी फैसला किया गया है। इस्लामाबाद में अहम तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अहम तरीन ऐलान किया कि हुकूमत पर पाबंदी लगा और हुकूमत जो है वो पाबंदी पीटीआई पर लगा रही है। उनका कहना था कि आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस काबीना से मंजूरी के बाद दायर किया जाएगा। मुमकिन है कि काबीना अगले इजलास में पाबंदी का मामला लाया जाएगा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करना पड़ा तो करेंगे। अता तारड़ की जानिब से ये बयान भी सामने आया है कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के खिलाफ बैरून मुल्क में मखसूस लॉबियाँ साजिश करने में मसरूफ़ हैं। तहम्मुल को कमज़ोर समझा गया मगर अब ऐसा नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ये भी कहना था कि पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़र सानी अपील दायर करने का फैसला हो चुका है। हुकूमत नज़र सानी अपील दायर करने जा रही है, ये हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को बिन मांगे रिलीफ दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जिन ख़वातीन की हक तलफी हुई है वो समझती हैं कि नज़र सानी अपील दायर की जाए। पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल तक स्टे लिया। बानिया पीटीआई ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को फ़रोग़ दिया। बानिया पीटीआई का पूरा ख़ानदान 9 मई को जलाओ घिराव में मुलव्वस था। 9 मई को ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफाद पर हमला किया गया। बानिया पीटीआई दहशत गर्दों को वापस लेकर आए। बानिया पीटीआई को पाकिस्तान में दहशत गर्दों को बसाने का इख्तियार किसने दिया? अता तारड़ की जानिब से कहना था बानिया पीटीआई की मुल्क दुश्मनी साफ जाहिर है। अपडेट इस वक्त आपको कर रहे हैं, अहम तरीन खबर दे रहे हैं। हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने का केस करेगी। अता तारड़ की जानिब से बताया गया है हुकूमत ने मुतालबा है किया है और हुकूमत का ये मुतालबा है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात का जानिब से ये कहना था बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का भी फैसला कर लिया गया है। हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का ऐलान किया है।